What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel, and today I'm gonna react on Maharani by Krishna, lyrics breakdown by Rohan Karyappa. And thank you, Rohan Karyappa, for doing this lyrical breakdown. I already react on this song, and I uh, did catch some of the bars and some of the reference in this diss track to move far, but I didn't get it all, and you guys wanted me to react on this too. So yeah, I'm gonna react. And you guys are new to my YouTube channel and you guys like what you see on this YouTube channel, then please guys don't forget to subscribe my YouTube channel. So let's check this out. हेलो नमस्ते पैरीपोना पाए लागू। मेरा नाम है रोहन कारियापा एंड आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑफ अ डिस दैट हैज ब्रुटैलिटी रिटन ऑल ओवर इट। ट्रैक का नाम है महारानी बाय कृष्णा। मूफाड रिस्पॉन्डेड टू कृष्णा's diss within 24 hours and this time Krishna does. Yeah, you guys told me he made this song in 24 hour. I think you guys said he made this thing in 8 hours or something, right? the same to show his prowess. हम जनरली आर्टिस्ट्स को उनके कंटेंट के लिए इस चैनल पे प्रेज करते हैं एंड वही सेम चीज महारानी के साथ भी होगी। बट वन थिंग फॉर विच आई रियली एडमायर कृष्णा इज बिकॉज ऑफ हिज ब्रवाडो एंड हाउ फियरलेस ही इज। एमिनेम इन वेस्ट इज फियरलेस। वो अपने गानों में बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, क्रिस्टीना एगुलेरा, ट्रम्प जैसे बहुत Yep. This guy, rap guy, his alter ego Slim Shady, he don't give a F about nobody. He even did his own mom, his wife, his ex-wife, his father. So no one is safe. This guy is crazy, bro. This is the god right there. वो अपने गानों में बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, क्रिस्टीना एगुलेरा, ट्रम्प जैसे बहुत सारे लोगों को डिस कर चुका है एंड डिस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली प्रॉब्लम इज अगर आप एक बंदे को So you guys know it or not, when Eminem did the BTE cipher and he did Donald Trump, when he Donald Trump became a president, he sent secret service to interrogate him. डिस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली प्रॉब्लम इज अगर आप एक बंदे को ब्रूटली डिस कर देते हो अपने गाने में, यू बर्न ब्रिजेस विद दैट पर्सन एंड यू कैन नेवर वर्क विद हिम और हर इन द फ्यूचर। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टंट ट्राई किया है एंड लेटर दे हैड टू अपोलोजाइज टू दैट सेलेब ऑन सोशल मीडिया। बाय द वे, कैन यू गेस व्हिच रैपर एम आई टॉकिंग अबाउट हियर? Who is he? I think he's talking about this hip hop. All right. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टंट ट्राई किया है एंड लेटर दे हैड टू अपोलोजाइज टू दैट सेलेब ऑन सोशल मीडिया। बाय द वे, कैन यू गेस व्हिच रैपर एम आई टॉकिंग अबाउट हियर? मूविंग ऑन, कृष्णा इन दिस ट्रैक हैज डिस्ड मूफाड, ऑफ कोर्स ही हैज डिस्ड ज़िकी मीडिया, ही हैज डिस्ड देसी म्यूजिक फैक्ट्री, ही हैज डिस्ड टोनी कक्कर, ही हैज डिस्ड अमिताभ बच्चन एंड ही हैज आल्सो डिस्ड रेखा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो प्रॉप्स टू कृष्णा। He's Amitabh Bachchan, he have Rekha and left her. Right? Now for being this fearless. And before you start watching the breakdown, comment and try to guess कि इस diss track में ऐसा कौन सा बार होगा जिसको 3 points मिलने वाले हैं. Let's see if you can get it right. I think the Kit Kat line, there was something line he gonna open the Kit Kat with the candy, right? Slice something. I think that gonna get a 3. Guys, just go in the comment and tell me what do you guys think? 3, we're gonna get 3 point in what bar? I think for me, I think that Kit Kat, the candy line, I think gonna get 3 point. And for now, without wasting any time, let's jump right into it. Maharani is the female version of Maharaja, and we all know कि Mufad addresses himself as Maharaja. Also, Maharani sounds like Marani, which means get fucked. And अगली line इसी meaning of Marani को continue करती है। सुना तुझे भी अपनी Bro, even title have this
This is crazy. ये मरवानी होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी। तो कृष्णा कह रहे हैं कि मुफाड़ को कृष्णा से मरानी है by having a beef with him. He then says कि इस ठुकाई के बाद मुफाड़ के पैर भारी हो जाएंगे। पैर भारी होने का मतलब होता है मुफाड़ प्रेग्नेंट हो जाएगा इस ठुकाई के बाद। What in the comedy going on here? पैर भारी हो जाएंगे। पैर भारी होने का मतलब होता है मुफाड़ प्रेग्नेंट हो जाएगा इस ठुकाई के बाद। गहराई में मैं शार्क मेरी लहर आ रही तू वो जल परी जो नहर में ना तैर पारी। What a great line। कृष्णा कहते हैं कि वो गहरे पानी के शार्क है एंड उनकी लहर यानी उनका ट्रेंड सेट हो रहा है। एंड देन ही सेज कि मुफाड़ इज अ मियर जल परी। बाय द वे जल परी वाज द नेम जो कृष्णा ने मुफाड़ को अपने पिछले ट्रैक अनटाइटल्ड में दिया था। सुनहरे रंग के जल परी बाल वाले। कृष्णा सेज कि मुफाड़ एक जल परी है जो नहर में यानी कैनाल में तैर नहीं पा रही। नाउ दिस इज अ डबल एंटोंड्रे वेयर द फर्स्ट मीनिंग सेज कि कृष्णा शार्क है हिप हॉप में और मुफाड़ एक जल परी है जो कम पानी में भी तैर नहीं पा रही है। द अदर मीनिंग इज अ वर्ड प्ले बिटवीन नहर एंड नायर, जिसमें वो मुफाड़ को बोल रहे हैं कि वो मिस्टर नायर जो कि रफ्तार की एल्बम है उसमें जगह नहीं बना पाए, जल परी तैर नहीं पाई नहर में। रिमेंबर इससे पहले जो रफ्तार की एल्बम आई थी विच वाज कॉल्ड 0 to Infinity, उसमें मुफाड़ के साथ फीचर्ड एक गाना रफ्तार ने इंक्लूड किया था विच वाज कॉल्ड सारे करो डैब। व्हाट अ क्रेजी लाइन दिस इज। पड़ेगा थप्पड़ तू असली खबर पढ़ मैंने महारानी को फाड़ दिया। खबर इन दिस लाइन रिफर्स टू मुफाड़्स डिस, जिसमें वो कहते हैं कि कृष्णा और मुफाड़ के बैटल के बाद सुबह हेडलाइन छपेगी न्यूज़पेपर में कि मुफाड़ ने कृष्णा को उधेड़ दिया। तरफ तू एक तरफ मैं ही मैं, महाराज ने उधेड़ दिया, सुबह होगी हेडलाइन। कृष्णा सेज की असली खबर ये होगी कि कृष्णा ने महारानी यानी मुफाड़ को फाड़ दिया। फाड़ इज अ पार्ट ऑफ मुफाड़्स नेम। जस्ट नोटिस कृष्णा's choice of word in this whole rap. देखा लगाना चाहता तू रेखा सिंदूर से मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया। This is one of my favorite lines, but इसको deep You should put that. Oh, that he put in the like Makasam. You should put that like famous meme in here. And this line is crazy, bro. Like, it's funny. सिंदूर से मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया। This is one of my favorite lines, but इसको decode करने से पहले मुफाड़ का एक डिस सुन लेते हैं। सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन, आओ जरा बैठे स्टूडियो में, दोनों 24 घंटे डेडलाइन। इसमें मुफाड़ ने बोला था कि सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन। लाइन इन हिंदी इज कॉल्ड रेखा। रेखा इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड जिनका चक्कर अमिताभ बच्चन के साथ चल रहा था जवानी में, बट लेटर ऑन अमिताभ बच्चन एंडेड अप मैरिंग जया बच्चन एंड नॉट रेखा। बट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रेखा स्टिल वेयर सिंदूर फॉर अमिताभ। तो कृष्णा कहते हैं कि तू सिंदूर से रेखा लगा, बट कृष्णा मुफाड़ की लेकर उसको रिजेक्ट कर देंगे जैसे अमिताभ ने रेखा के साथ किया था। तेरी प्रजा नहीं ये मेरी अवाम है, तेरे दोगलेपन का तो राहू गवाह मैं। मुफाड़ अपनी फैन बेस को प्रजा बुलाते हैं। कृष्णा सेज कि यहाँ तेरी प्रजा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरे फैंस है। कृष्णा सेज कि उन्होंने मुफाड़ की हिपोक्रेसी क्लोजली देखी है एंड नोटिस हाउ ही प्रोनाउंसेस रहा हूँ एज राहु। राहु इन एस्ट्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम बैड टाइम्स इन योर लाइफ। आपके ग्रह अगर राहु में आ गए मतलब आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। कृष्णा सेज कि मुफाड़ के राहु वो है। एयर होस्टेस थी ना तेरी बंदी, वो तो उसका काम है, पर तू क्यों हवा में। नाउ मुफाड़ की एक्स गर्लफ्रेंड वाज एन एयर होस्टेस एंड एयर होस्टेस हवा में होते हैं बिकॉज दे वर्क इन एन एयरक्राफ्ट। बट दिल्ली स्लैंग में हवा में रहने का मतलब होता है ईगोटिस्टिकल या ओवर कॉन्फिडेंस में रहना। फॉर एग्जाम्पल, क्या बात है जब से बंदी बनी है बहुत हवा में उड़ रहा है तू आजकल। गेट द पॉइंट। दिस is the first personal attack where Krishna has included Mufad's ex-girlfriend in the diss. तू था डॉग तेरी बिच में ही चाहता। तू है डॉग refers to Mufad's diss to Raga जिसका नाम था Bitch I'm a Dog. खाती बिल्लियां ये खौफ करूं जो गाने drop, 'cause bitch I'm a dog, bitch I'm a dog. कृष्णा कह रहे हैं कि तू Bruh. At least you can say it like, be I am a god. Like, dog. Really, Mufad. Or at least say you're a lion. Dog. I don't know about that, bro. खौफ करूं जो गाने drop, 'cause bitch I'm a dog, bitch I'm a dog. कृष्णा कह रहे हैं कि तू है डॉग, तेरी बिच मैं ही चाहता, मतलब मुफाड़ की गर्लफ्रेंड को कृष्णा पटाएगा। ऑल्सो बिच मैं ही चाहता इज अ वर्ड प्ले ऑन बीच में ही छाता, मतलब कृष्णा मुफाड़ के बीच में छाता घुसा देंगे। नॉक नॉक रात के बीच में ही आता, उसने कहा क्रिश गिव मी दैट डिक, मेरा इतना बड़ा उसका मुंह फाड़ के भी फिट नहीं आता।
this line give me like this line is like so funny and so bro it is like brutal and Mufar like मुंह फाड़ के टिक मेरा इतना बड़ा उसका मुंह फाड़ के भी फिट नहीं आता. This is unbelievably brutal. Reminds me of Tupac's diss to Biggie named Hit 'Em Up, जिसमें Tupac ने बोला था कि he slept with Biggie's wife. यहाँ भी ऐसे ही कुछ सीन है. Along with that brutality, Krishna has also incorporated Mufad's name into the sentence and rest in peace to Tupac and Biggie. very smartly and effortlessly. Amazing line. बुरा लगा रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हसल में. He was not invited in Hustle and that's exactly why Mufad started this beef. Because वो upset थे कि उनके सब contemporary rappers को Hustle पर बुलाया गया था लेकिन उनको नहीं बुलाया गया. Notice this that Krishna is using. This is a reference to Raga's diss पूछ मेरा नाम जो उन्होंने Mufad के लिए निकाला था and उसमें भी ऐसा ही कुछ segment आपको देखने को मिल जाएगा. दिल से ना खेलियो और अपनी बंदी की फिक्र ना कर कहीं तुझे लग रहा हो घर पे अकेली हो ऐसे लगे जैसी चली हो चेनसॉ. Nice. बुरा लगा कृष्णा भैया आगे निकल गए असल में. बुरा लगा आर्टिस्तान ने तुझे प्यार नहीं किया. आर्टिस्तान मुफाड का प्रीवियस लेबल है जिसको उन्होंने छोड़कर DMF ज्वाइन किया था. बुरा लगा तुझ पे DMF ने कभी ध्यान नहीं दिया. मुफाड ने DMF यानी देसी म्यूजिक फैक्ट्री को 3 साल पहले ज्वाइन किया था पर अब तक उनके कुछ हैंडफुल ही गाने DMF के YouTube चैनल पर रिलीज हुए हैं. And Mufad probably had this issue कि DMF उनको पूरी तरह attention नहीं दे रहा है and that's a reason why he wanted to switch to Kalamkar. By the way, this part did not have any crazy bar or references, but just the tone of this part was so damn brutal. करने लगा brainstorming ज़्यादा पर हमले से पहले एक warning आता. Brainstorming मतलब होता है कुछ भी creative idea या कोई solution ढूंढने के लिए हम सोचने बैठते हैं और बहुत सारे ideas को evaluate और reject करते रहते हैं until we find a good idea. क्लासिकल संगीत का है शौक मुझे आजकल उठ के चलाता हर मॉर्निंग रागा. Look at the name drop. मुफाड ने अपने सॉन्ग Bitch I'm a God में 47 और सिद्धू मूसेवाला का नेम ड्रॉप किया था. And look how Krishna responds with a plethora of name drops throughout the song. रागा एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड दिल्ली का रैपर है जिनकी बहुत इंटेंस बीफ हुई थी मुफाड के साथ. कृष्णा teases मुफाड by saying कि आजकल रोज सुबह मैं रागा को सुनता हूँ, but twists it into a double entendre by mentioning क्लासिकल म्यूजिक वाला रागा यानी राग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राग आपको क्लासिकल म्यूजिक में मिलते हैं वो सुबह सुनते हैं. डिस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है. डिस मिनिमल मतलब होता है मुफाड डिड नॉट गो ऑल आउट विद हिज डिस बिकॉज उन्हें मैक्स से डर लगता है. मैक्स इज द स्टेज नेम ऑफ रफ्तार व्हेन ही वाज अ डांसर एंड लुक हाउ इंक्लूड्स एंटोनिम्स एंड देन नेम ड्रॉप्स रफ्तार. Yet another name drop, yet another smart bar. मेरे दांत पीले नहीं तेरे फैक्ट्स किधर है. मुफाड ने कृष्णा के सुनहरे बाल वाले डिस का रिप्लाई देते हुए बोला था कि मेरे बाल पीले हैं और कृष्णा के दांत पीले हैं. हियर कृष्णा सेज कि उन्होंने जो कहा था वो सच्चाई थी कि मुफाड के बाल सुनहरे हैं बट कृष्णा के दांत पीले नहीं हैं. दैट मीन्स मुफाड इज नॉट अटरिंग फैक्ट्स इन हिज ट्रैक्स. मैंने डाला गाना 11:30 तूने डाला 10 पे 22.5 घंटे मैच किधर है. वाओ. सो मुफाड ने 22.5 घंटे 22.5 आवर्स के बाद कृष्णा की डिस का रिस्पॉन्स वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था. बट उसके टाइटल में एंड वीडियो में लिखा था कि ये वाला डिस 10 घंटे में बनाया गया है. मुफाड ने 10 घंटे ये सोच के लिखा होगा, मे बी आई एम अज्यूमिंग, कि उन्होंने ये डिस पे काम करना बहुत लेट स्टार्ट किया था, मे बी 12 घंटे बाद किया था एंड फ्रॉम दैट टाइम ही इज काउंटिंग दोस 10 आवर्स जो उनको लगे. बट आई स्टिल थिंक कि कृष्णा हैज अ पॉइंट हियर बिकॉज तलहा यूनिस ने अपनी एक स्टोरी में बताया था कि उन्होंने बहन के जो था वो सिर्फ 3 आवर्स में लिखकर रिकॉर्ड करके वीडियो बनाई थी. बट ही स्टिल कॉल्ड इट 24 आवर डिस बिकॉज उसका अपलोड टाइम इनिशियल चेनके की स्टोरी के 24 घंटे बाद था. 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया. 4 साल में मुफाड हैज मूव्ड फ्रॉम आर्टिस्तान टू देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड देन ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ DNH गैंग जो कि अब कलमकार हो चुका है. तो कृष्णा इज टेलिंग कि मुफाड एक लेवल पर रुक नहीं रहे हैं, नए नए लेबल्स ट्राई कर रहे हैं. 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया. मुफाड के लास्ट 1 साल में से कोई भी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं हुए हैं. मालफूक के दिन भर रहता है स्टोन पर, आज तक एक शो तू रॉक नहीं कर पाया. वाओ व्हाट अ लाइन. भंड होना या हाई होना इसको इंग्लिश में स्टोन्ड होना भी बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई गॉट स्टोन ब्रो, समझ रहे हो. बट स्टोन इज ऑल्सो अ पत्थर, हिंदी वाला पत्थर.
एंड पत्थर के लिए इंग्लिश का दूसरा शब्द क्या है? यस, एग्जैक्टली, रॉक. बट रॉकिंग अ कॉन्सर्ट ऑल्सो मीन्स परफॉर्मिंग वेल इन अ कॉन्सर्ट. एंड इन सब की अब खिचड़ी बना दो, इन सबको मिला दो, तो कृष्णा कहते हैं कि माल फूक के मुफाट स्टोन्ड रहता है बट कोई कॉन्सर्ट रॉक नहीं करता. स्टोन्ड एंड रॉक आर यूज्ड सो वेल इन दिस सेंटेंस. ये क्या जीनियस वाली हरकत चल रही है यार. अभी बहुत रेज है पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी. इसमें कृष्णा ने बोला है कि मुफाट अभी बहुत गुस्से में बोल रहा है लेकिन स्टेज शो में उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी. रेड बुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया, रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी. रेड बुल बैटल चैंपियनशिप 1 नामक एक इवेंट होता है मेनली फॉर बी बॉइंग बैटल, बट वहां पे हिप हॉप के अदर एलिमेंट्स की परफॉर्मेंसेज भी आपको देखने मिल जाएगी. तो अपेरेंटली उस कॉन्सर्ट में मुफाट डिड नॉट परफॉर्म वेल. थोड़ा कम फूक तू मारली नहीं है, हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है. बॉब मार्ले वाज अ सिंगर हु यूज्ड टू स्मोक अ लॉट ऑफ मैरिजुआना. इनफैक्ट उनके गाने का नाम भी है गांजा इन माय ब्रेन. तो कृष्णा बोल रहे हैं कि तू कम गांजा फूका कर क्योंकि तू बॉब मार्ले नहीं है. एंड देन ही सेज कि रिसेंटली तेरी मार ली गई है, रेफरिंग टू रागास डिस पूछ मेरा नाम. जाके संभाल अपने रंगीन बाल बेटी, आखिरकार ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है. नाउ आई हैव नोटिस कि कृष्णा दो चीजों से बहुत ज्यादा बुरी तरह ट्रिगर हो जाता है. नंबर 1, अगर उसके ओपोनेंट के बहुत लंबे बाल हो तो. नंबर 2, इफ हिज ओपोनेंट इज समहाउ रिलेटेड टू अ पर्सन नेम्ड टोनी. इस पर हम आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. Oh yeah, cause in Sida Makeover, right? Sida Makeover. Is that like a Tony something? Tony, he gonna band like a Emmy Hoy, and he gonna do doggy style. And now he's talking about Tony Cocker, and like long hair. Emmy Hoy and Mufar has like long hair, right? somehow related to a person named Tony. इस पर हम आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. लेना ना पंगा, लगा दूं मैं लंका, तुझ में ना क्षमता बनाने का ढंका. लगा दूं मैं लंका इज अ दिल्ली स्लैंग व्हिच मींस आई विल डिस्ट्रॉय यू. सुबह सुबह मुझे उधेड़ेगा बंदा, आज ही मेरा घंटा. मुफाट ने अपने डिस में बोला था कि अगर कभी कंपटीशन हुआ हमारा तो महाराज कृष्णा को उधेड़ देंगे, और ऐसी हेडलाइन सुबह न्यूज़पेपर में भी छपेगी. कृष्णा रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग अजी मेरा घंटा व्हिच मींस ऐसा कुछ नहीं होगा. ऑल्सो अजी मेरा घंटा इज अ नेम ऑफ अ ट्रैक बाय मुफाट जो उन्होंने DMF के लिए रिलीज किया था 3 साल पहले. लुक एट हाउ कृष्णा इज इंटीग्रेटिंग दीज थिंग्स इनटू दिस डिस ट्रैक. कारण बता अपनी अकड़ का, पिछली बार मिला तो शक्ल से शक्कर था. शक्ल से शक्कर मतलब होता है शक्ल से गे. दिल्ली स्लैंग में अगर आपको कोई आके मीठा या शक्कर ऐसा कुछ बोलते तो समझ जाना कि वो आपको गे बोल रहा है. तुझ पे मैं शक्कर था छोटे, तू मेरे ना टक्कर का, जाके या पकड़ जा तू टोनी कक्कड़ का. Okay, we have another Tony in the building. Tony Kakkar This one was like, I don't know. This one was bar, but I don't know. is the co-founder of Desi Music Factory. वही लेबल जिसने मुफाट को साइन कर रखा है. कृष्णा सेज कि उनको मुफाट शक्ल से गे लगता है एंड कृष्णा को मुफाट की सेक्सुअलिटी पर शक भी है. एंड देन उन्होंने बोला मुफाट को कि जा तू टोनी कक्कड़ का पकड़ ले. ब्रूटल स्टफ. भसड़ का जिक्र अब कर रहा है जान के, मेरा विकिपीडिया पढ़ ले तू ध्यान से. मुफाट ने अपने राज जोन्स के इंटरव्यू में बोला था कि कृष्णा ने ऐसी भसड़ या डिस किया है व्यूज के लिए. मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी को ये बात समझ ना आ पाए कि डिस से व्यूज आते हैं नहीं आते हैं तो वो बेवकूफ है. आते हैं ब्रो, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते. कृष्णा को देख लो, बहती गंगा में उसने करा है, मैं तो बोलता हूँ. तो कृष्णा आस्क्स हिम टू रीड हिज विकिपीडिया पेज जिसमें लिखा है कि 2010 वाला उनका सॉन्ग कैसा मेरा देश बिकेम द सेकंड मोस्ट वॉच्ड म्यूजिक वीडियो इन इंडिया, दैट टू ओवरनाइट. ध्यान से पढ़ा जिकी मीडिया के कूड़ेदान में. जिकी मीडिया शायद एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है दैट हेल्प्स मार्केट आर्टिस्ट्स एंड गिव देम लाइव शोज एंड डील्स एंड एटसेट्रा. यू विल सी जिकी मीडिया का लोगो इन ऑल द मुफाट्स सॉन्ग. एंड कृष्णा ने इस बीफ में जिकी मीडिया को भी नहीं छोड़ा. मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते, फिर ट्रैक पे छोड़ू तुम्हें नंगा करके. मुफाट ने अपने ट्रैक में बोला था कि तू गुस्से वाला इंसान नहीं है. हाथ चला चादर में, तू गुस्से वाला नहीं है. एंड कृष्णा रिस्पॉन्स बाय सेइंग कि वो तब तक गुस्सा नहीं करते जब तक उनसे कोई सामने से पंगा ना ले ले. एंड देन अगर कोई पंगा ले ले तो कृष्णा उसको अपने ट्रैक में नंगा कर देते हैं. ऑल्सो ट्रैक पे मैं छोड़ू तुझे नंगा करके, इस छोड़ू की स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए. इस छोड़ू का मतलब होता है स्क्वर्ट व्हाइल यू आर नेकेड. Krishna will make you squirt on his track. And how does someone make you squirt?
Yes, Krishna will basically fuck you in his track. अब धो लिए हाथ तूने गंगा जल में। मूफार्ड ने अपने राज जोन्स वाले इंटरव्यू में कृष्णा के बारे में बोला था कि उसने एमिवे के अगेंस्ट डिस निकालकर बहती गंगा में हाथ धोया है। एंड कृष्णा हियर इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू मूफार्ड कि क्या अब मूफार्ड ने कृष्णा और रफ्तार को डिस करके भी गंगा जल में हाथ धोए हैं। जल में मैं घुसे वाला नहीं मिलने घंटा घर पे। मूफार्ड ने अपने डिस बिच आई एम अ गॉड में बोला था कि कृष्णा घुसे वाला नहीं है, यानी फिजिकल फाइट कृष्णा के बस की नहीं है। तो कृष्णा सेज कि अगर तुझे लगता है मैं घुसे वाला नहीं हूं तो मुझे घंटा घर पे आके मिल। तो मूफार्ड लिव्स नियर हरिनगर का घंटा घर एंड दैट्स व्हाई Yeah, you guys told me like Ghantaghar is like far live nearby that Ghantaghar. आपको घंटा घर के बाद एक बैकग्राउंड में छोटी सी आवाज आ जाएगी जिसमें हरिनगर जहाँ पे मूफार्ड का घर है वो बोला हुआ सुनाई दे जाएगा। एंड कृष्णा इज रिमाइंडिंग हिम ऑफ हाउ ही वांटेड टू मीट बियर्ड गैंग इन परी चौक, प्रूविंग दैट वो घूसे वाला बंदा है। पंच लाइन पे पंच लाइन पे पंच लाइन, इसको देख के लगता है जैसे मेरा लंच टाइम। नाउ इससे पहले वाले बार्स में घूसे की बात चल रही थी एंड घूसे को इंग्लिश में बोलते हैं पंच, जो कि नेक्स्ट बार का टॉपिक है। लुक एट द ट्रांजिशन दैट कृष्णा इज ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल, बट दिस पंच डजंट मीन घूसे वाला पंच, दिस पंच मीन्स पंच लाइन यानी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स। कृष्णा सेज कि इस डिस में बहुत सारी पंच लाइन्स मारी है उन्होंने एंड देन ही सेज कि मूफार्ड को देखकर उनको ऐसा लगता है कि उनका लंच टाइम चल रहा है, मतलब ही विल ईट मूफार्ड इन दिस बीफ। अब स्लिक टैग जैसे खुलू किट कैट, लाता मैं बार जब आता है क्रंच टाइम। This is hands down the most underrated bar of this whole song. I will slit that means वो गला स्लिट कर देंगे, यानी वो मूफार्ड का गला काट देंगे। Also, KitKat is a chocolate जिसको स्लिट करके खोला जाता है। Now the next lines are लाता मैं bars जब होता crunch time. This whole segment is a double entendre. लाता मैं bars से कृष्णा का मतलब है कि वो किटकैट जैसा चॉकलेट बार लेकर आते हैं जब होता क्रंच टाइम, यानी जब भी कुछ क्रंची खाने का टाइम होता है तो किटकैट जैसा क्रंची चॉकलेट बार खाते हैं। द अदर मीनिंग ऑफ दिस इज लिटरल इंग्लिश मीनिंग कि वो बार्स यानी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स लेकर आते हैं जब होता क्रंच टाइम। क्रंच टाइम इन इंग्लिश मीन्स हाई प्रेशर सिचुएशन, जो कि ऑब्वियसली एक बीफ के दौरान रहती है। व्हाट इज दिस मैन, दिस इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट। I told you, you give him 3 point. Like, what in the 100 IQ going on here, bro? Like, I already told you guys, like, whenever I hear Krishna rap, I feel like dumb as hell. Like, खाने का टाइम होता है तो किटकैट जैसा क्रंची चॉकलेट बार खाते हैं। द अदर मीनिंग ऑफ दिस इज लिटरल इंग्लिश मीनिंग कि वो बार्स यानी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स लेकर आते हैं जब होता क्रंच टाइम। क्रंच टाइम इन इंग्लिश मीन्स हाई प्रेशर सिचुएशन, जो कि ऑब्वियसली एक बीफ के दौरान रहती है। What is this man? This is absolutely next level shit. I am not the one to fuck with, तू लगे इन ब्रेड जैसे बन में कटलेट। This is the most brutal bar of the track. तू लगे इन ब्रेड। इन ब्रेड मीन्स ऐसा बच्चा जो फैमिली के आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद होता है। जैसे अगर कोई बहन भाई आपस में कर ले तो उसका जो बच्चा होगा दैट इज एन इनब्रेड चाइल्ड, ठीक है। ही देन कॉल्स मूफार्ड अ कटलेट व्हिच इज नॉर्मली कंज्यूम्ड व्हेन इट इज इन ब्रेड, नॉर्मल खाने वाला ब्रेड। What a line! अब बंटी के बिस्तर में कर तू वर्जिश, I guess for you son is fun to suck dick. By बंटी कृष्णा means एमिवे बंटाए। कृष्णा मूफार्ड को कहते हैं कि तू एमिवे के बेड पे जाके एक्सरसाइज कर। Here exercise is an euphemism to sex and then he asks मूफार्ड to suck एमिवे's D. बीफ में तेरी क्या औकात है, I kill guy छोड़ी 100 लाश है। Pretty self-explanatory. Krishna has killed 100 people in beef before मूफार्ड। तेरा खानदान सुनता है एमिवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है। ओह ये बहुत ज्यादा ब्रूटल था, यानी इस एक लाइन में he has dissed 4 different people. He has dissed एमिवे because उसको सुनने वाले बेवकूफ होते हैं। He has dissed एमिवे's fan क्योंकि वो बेवकूफ हैं। He has dissed मूफार्ड्स parents because they listen to एमिवे and then he has dissed मूफार्ड। This is really getting dirty and ugly right here. मैदान में बस असली जो रख दे कदम, तू नकली जन्म से अब रख ले बरम। रिप्लाई के नाम पे तू कर ले शर्म, रख दे कलम, हर जस तू कर दे खत्म। Now इतने effortlessly कृष्णा 4 syllable rhymes और internal rhymes कर देता है that I don't even feel like mentioning it now. But here is the rhyme scheme for this look part. at this, कर bro. ले शर्म, रख दे कलम, हर Look at this. Feel like mentioning. Look at this. This guy is like, this man is the legend, bro. Like
you guys like hip hop and you guys are like into the hip hop, then and you guys don't like Krishna, then bro, you have a problem. You really have a problem. You probably are like brainwashed from listening to that like mumble rapper song, or you're just a hater. You're just a hater, bro. It now. But here is the rhyme scheme for this part. कर ले शर्म रख दे कलम हर जस तू कर दे खत्म. And a lot of people after listening to these lines are saying कि इसके बाद हरजस reply देगा, उसने हाँ भाई बोला etc. I'm not sure obviously, but here's my interpretation of these lines. Harjas means But like Harjas did reply, right? praise the Lord. Krishna is the Lord. Krishna says that Mufad cut is itna weak hota hai that sometimes he sounds like he's praising Krishna, and then asks Mufad to stop praising him, which means stop dissing him. And then Harjas validates Krishna's line by saying haan bhai. This is just a smart use of Harjas's name and voiceover. तालियां यार, तालियां, amazing. 40 भी सुनता है कृष्णा के गाने, हाँ सच नहीं बोलता तू फेकर है बेटा. 47 and Mufad are very good friends. साथ ही साथ 47 has very good relation with कलमकार artists as well. Mufad ने 47 का name drop किया था अपने diss track में, and Krishna here says कि even 40 listens to Krishna. And Yeah, and they released this like song together, like Bob Say or something. 47 and Krishna. Mufad knows about that, but he's lying on his track. तुझसे बड़ा हुआ दूसरा महाराज किंग रॉको का चौको तू लेकर है बैठा. खा ले तू मुंह में अब डाल ले तू. Yet another name drop. Mufad अपने आप को महाराजा बुलाते हैं. Also, King Rocco नाम की एक रैपर है जो अपने आप को महाराजा बुलाते हैं. Krishna says कि Rocco Mufad से भी बड़ा है, and then he asks him to hold Rocco's choco and then later eat it. You know what Krishna means by Rocco's choco. You obviously know that. रैप छोड़ बेटी तेरे बस की नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पहले जुल्फे संभाल ले तू. Wow. First of all, he addresses Mufad as बेटी and then बोलते हैं कि अपनी जुल्फे संभाल लो. Yet another diss on Mufad's hairstyle. तू इतने साल से बनाया नहीं हिट, हिप हॉप के घर में लगाया नहीं ब्रेक. Krishna कहते हैं कि Mufad has not contributed anything in the growth of Desi hip hop and he has made flop music throughout his career. बीमारी में तूने बनाया ये डिस, अफसोस फिर भी कुछ लिख पाया नहीं. सिक कल वाले ब्रेकडाउन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिक मीन्स बीमार, ऑल्सो सिक मीन्स फाड़ू या बहुत ज्यादा सही. कृष्णा सेज कि तू बीमार था जब तू अपने लिरिक्स लिख रहा था, पर फिर भी तेरे लिरिक्स सिक नहीं थे, मतलब बहुत सही नहीं थे. मारने का था तुझे इरादा नहीं, दिखाया रिस्पेक्ट और बदले में मांगा नहीं. धक्का दोगे तो कठोर मुझसे ज्यादा नहीं. कृष्णा सेज कि मैं अपने में बहुत सही चल रहा होता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं. मैं ही भगवान मुझसे बड़ा महाराजा नहीं. कृष्णा इज अ गॉड and God is always bigger than the king. And इसी के साथ महारानी का breakdown is over and the final score is. So guys, this was Maharani lyrics breakdown by Rohan Karyappa, and like I only have like respect and love to Krishna, bro. Like big salute and respect to him. If this guy is like too good, like how he can write that kind of like stuff, and like, and when he rap, like Rohan Karyappa, he said like whenever we heard like hear the rhyme scheme or the wordplay he do, we feel that is normal, because for Krishna that is normal, that's how he think, right? But for normal people, for the normal like hip hop listener or the music listener, it is, bro, like we cannot even think that kind of stuff in our life, bro. So only respect to him, bro. Like Krishna is dope as hell, and we already know he's the legend. His pen game is insane. So if you guys enjoyed this video, then please guys don't forget to like, comment, and do not forget to subscribe my YouTube channel for more reaction videos. So take care guys, be safe, be kind to people. Peace. I'm out.